وہ عروسی جوڑے میں ملبوس سجی سنوری اپنی نئی زندگی کی شروعات کرنے جا رہی تھی۔ باقی سب لڑکیوں کی طرح اس کے دل میں بھی اپنے اس دن کو لے کر بہت سے ارمان تھے۔ بلا شبہ اس کی شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی، اور اب وہ اس بڑے سے خوبصورت کمرے میں موجود بیڈ پر بیٹھی اپنے ہم سفر کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور بہرام حسن اپنی تمام تر وجاہت سمیت کمرے میں داخل ہوا۔ کالی شلوار قمیض پہنے، کندھوں پر اجرک لیے، وہ واقعی کوئی وڈیرا لگ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا وہ بیڈ تک پہنچا اور حوریہ کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر یوں ہی اس کے جھکے سر کو دیکھنے کے بعد وہ سرد لہجے میں بولا، ایک بات میں تمہیں پہلے ہی باور کروا دینا چاہتا ہوں لڑکی، کہ میرا اور تمہارا رشتہ ایک مجبوری سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے۔ تمہارے لیے نہ میرے دل میں کوئی جگہ ہے اور نہ کبھی بنے گی۔ میں صرف اور صرف نیہا سے محبت کرتا ہوں۔ تم سے شادی کرنے کا میرا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ مجھے تم سے اپنا وارث چاہیے، اور اگر تم مجھے وارث نہ دے سکی تو پھر اپنا انجام دیکھنا۔ اپنے ہاتھوں سے سختی سے اس کا جبڑا پکڑے وہ سرد لہجے میں بولا تھا، جبکہ وہ اس کے الفاظ سن کر ہی سن رہ گئی تھی۔ بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کا چہرہ بھگونے لگے۔ میں سوچ رہی ہوں اب ہمیں حوریہ کی شادی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ حسن صاحب کمرے میں داخل ہوئے تو ریحانہ بیگم نے جھجکتے ہوئے بات شروع کی۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، وہ مختصر سا جواب دے کر خاموش ہو گئی۔ آپ اجازت دیں تو پھر کسی مناسب رشتے کی تلاش کریں۔ رشتہ تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے جب گھر میں ہی رشتہ موجود ہے؟ کیا مطلب؟ گھر میں کون سا رشتہ موجود ہے؟ وہ حیرانی سے بولی۔ وقت آنے پر معلوم ہو جائے گا آپ کو۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں سائیں؟ ہم جو سوچ رہے ہیں آپ اس پہلو پر نہیں سوچ سکتے۔ کچھ عرصہ انتظار کریں، پھر آپ کو بھی پتہ لگ جائے گا۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ مناسب سمجھے۔ وہ جانتی تھیں کہ وہ وقت آنے سے پہلے انہیں کچھ نہیں بتائیں گے، اس لیے خاموش ہو گئیں۔ آپ بہرام سے کہیے کہ وہ کل ہی یہاں پہنچے، مجھے اس سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ اپنا حکم سناتے ہوئے کمرے سے باہر چلے گئے، جبکہ ان کو سوچوں میں دھکیل گئے۔ حسن صاحب اپنے علاقے کے MNA تھے اور کافی روبدار شخصیت کے مالک تھے۔ حسن صاحب اور ناصر صاحب دو ہی بھائی تھے۔ ناصر صاحب اور ان کی اہلیہ کا انتقال چند سال پہلے ایک کار ایکسیڈنٹ میں ہوا تھا۔ ناصر صاحب کی ایک ہی بیٹی تھی، حوریہ، جو کہ 19 سال کی تھی۔ انٹر تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ گھر پر ہی ہوتی تھی۔ والدین کی وفات کے بعد حوریہ کے اندر کافی ڈر سا بیٹھ گیا تھا۔ وہ ہر چیز سے کتراتی تھی، اسے لوگوں سے بھی خوف آتا تھا۔ اس میں بالکل بھی خود اعتمادی نہیں تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ والدین کی وفات کے بعد اس کا کوئی خیال نہیں رکھتا تھا، بلکہ بڑی امی اور بڑے ابا نے تو اسے اپنی سگی اولاد کی طرح مانا تھا۔ لیکن شاید اکیلے ہونے کے باعث وہ خاموش سی ہو گئی تھی۔ نہ ہی اس کا کوئی بہن بھائی تھا اور نہ ہی کوئی اور کزن، صرف ایک بہرام ہی تھا۔ لیکن اس سے تو کبھی آج تک حوریہ کی بات بھی نہیں ہوتی تھی، نہ ہی اس کا سامنا ہوتا تھا۔ پہلے بھی وہ باہر پڑھنے گیا تھا، اب واپس آنے کے بعد بھی شادی کر کے وہ شہر ہی رہتا تھا۔ دوسری طرف حسن صاحب کا بھی ایک اکلوتا بیٹا تھا، بہرام حسن۔ بہرام شروع سے ہی سنجیدہ مزاج کا تھا۔ پہلے وہ تعلیم کی غرض سے باہر ہوتا تھا، وہاں پر ہی اسے ایک لڑکی پسند آ گئی تھی جس سے شادی کرنے کے لیے وہ ضد لگا کر بیٹھا تھا۔ حسن صاحب نے بہت اختلاف کیا تھا، لیکن اس کی ضد کے آگے ہار مانتے ہوئے انہوں نے اس کی شادی نیہا سے کر دی تھی۔ نیہا اپنے ہی مزاج کی لڑکی تھی، اس کی کسی سے اتنی نہیں بنتی تھی اور نہ ہی کوئی اس سے بنانے کی کوشش کرتا تھا۔ بہرام اور نیہا کی شادی کو 4 سال ہو چکے تھے، لیکن دونوں ابھی اولاد کی نعمت سے محروم۔ بابا سائیں، آپ نے مجھے بلایا تھا۔ وہ آج ہی ان کے حکم پر حویلی پہنچا تھا۔ مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے بہرام، اور مجھے پورا یقین ہے آپ میری کسی بھی بات سے اختلاف نہیں ہوگا۔ وہ سنجیدگی سے بولے۔ آپ حکم کریں بابا سائیں، میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ میں چاہتا ہوں اب آپ حوریہ سے شادی کر لیں، وہ سنجیدگی سے بولے، جبکہ بہرام حیرت زدہ سا انہیں دیکھتا رہا۔ میں پہلے ہی شادی شدہ ہوں بابا سائیں، وہ حیرت سے بولا، لیکن اب تک اولاد سے محروم ہے، جبکہ آپ جانتے ہیں ہمیں ہر صورت میں وارث چاہیے۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولے تھے، لیکن بابا سائیں ابھی میری شادی کو تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے، اللہ اپنا کرم کرے گا ہم پر بھی۔ 4 سال کا عرصہ تھوڑا نہیں ہوتا، ہم مزید انتظار نہیں کر سکتے وارث کے لیے۔
दो क्या, अगर हमें आपकी 4 शादियां भी करवानी पड़ी तो हम करवाएंगे, वो अटल लहजे में बोले। लेकिन बाबा साईं, हुरिया मुझसे बहुत छोटी है। उसने एक कमज़ोर सी दलील पेश की। वो जानता था वो अपने मौक़िफ़ से कभी पीछे नहीं हटने वाले। अगर आप नेहा से शादी की ज़िद ना करते तो तब भी आपकी शादी हुरिया से ही होनी थी, और इस बात से आप अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं। हुरिया की अब शादी की उम्र है, जबकि आप जानते हैं ख़ानदान से बाहर शादी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और ख़ानदान में आपके अलावा और कोई नहीं है। ख़ानदान से बाहर क्यों नहीं हो सकती शादी उसकी? अब बाबा साईं, मेरी शादी भी तो ख़ानदान से बाहर ही हुई है ना? वो नासमझी से बोला। आपकी शादी ख़ानदान से बाहर सिर्फ़ और सिर्फ आपकी ज़िद की वजह से हुई है, और आपके और हुरिया के मामले में बहुत फ़र्क है। उसकी शादी ख़ानदान से बाहर होने का मतलब है कि उसके नाम की सारी जायदाद भी ख़ानदान से बाहर जाना, जबकि आप जानते हैं ऐसा होना हमारे लिए कितना बुरा साबित हो सकता है। वो उसे तफसील से समझाते हुए बोले। लेकिन बाबा साईं, नेहा का क्या? मैं उसे कैसे समझाऊंगा? वो आपकी बीवी है, और उसे कैसे राज़ी करना है ये आपका दर्द सर है। हमने जो हुक्म देना था दे दिया, अब आप जल्द ही हमें बताएं ताकि हम शादी की तारीख तय करें। वो हतमी लहजे में बोले। मुझे कुछ दिन सोचने का वक्त दें बाबा साईं, वो सर झुका कर बोला। जवाब मुस्बत ही होना चाहिए, वरना अंजाम से फिर आप खुद भी बखूबी वाकिफ़ हैं। आते हुए वो संजीदगी से बोले, जबकि उनके लहजे में छुपी धमकी बहराम को खूब समझ आ गई थी। वो परेशान नज़रों से उन्हें जाता हुआ देखता रहा। कमरे का भी रुख कर लिया करो बहराम। वो कमरे में आया तो नेहा गुस्से में बोली, मैं इस वक्त बहुत परेशान हूँ, मुझे मज़ीद परेशान मत करो नेहा। वो गुस्से से बोला। क्या बात है बहराम, क्यों परेशान हो? वो उसके पास आते हुए बोली। तुम्हें बताने से परेशानी मज़ीद बढ़ जाएगी, वो झुंझलाते हुए बोला था। ऐसी बात नहीं है, तुम शेयर तो करो मुझसे। बाबा साईं मेरी दूसरी शादी करवाना चाहते हैं, वो संजीदगी से बोला। तो नेहा एक लम्हे को गुंग रह गई। ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? वो हैरानी से बोली। उनका कहना है कि उनको हर हाल में वारिस चाहिए। हमारी शादी को 4 साल हो चुके हैं, लेकिन हम अब तक औलाद की नेमत से महरूम हैं। लेकिन ये हमारे बस में तो नहीं है ना। वो दुख से बोली। मैं जानता हूँ, लेकिन मैं उनके फैसले की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। वो संजीदगी से बोला। तो क्या तुम मान लोगे उनकी बात? उनकी बात मानने के अलावा मेरे पास कोई और चारा भी नहीं है। इनकार की सूरत में नताइज से वो मुझे पहले ही आगाह कर चुके हैं। वो परेशानी से बोला। किससे करवाना चाहते हैं वो शादी तुम्हारी? वो कुर्ब से पूछ रही थी। हुरिया से। वो संजीदगी से बोला। तो नेहा को लगा कि जैसे उसकी दुनिया ही रुक गई हो। मैं कभी तुम्हारी शादी उससे नहीं होने दूंगी। तुम जिससे मर्जी शादी कर लो, लेकिन हुरिया से शादी नहीं होने दूंगी तुम्हारी। नेहा हुरिया को अच्छे से जानती थी। उसे पता था कि वो कितनी खूबसूरत और मासूम है। उसे देखकर तो कोई भी उससे मोहब्बत करने पर मजबूर हो सकता है। वो ये तो जानती थी कि बहराम को दूसरी शादी से वो नहीं रोक सकती, लेकिन हुरिया से शादी वो कभी होने नहीं देना चाहती थी। इसलिए चीखते हुए बोली, तुम हमारे रिवाज से नावाकिफ़ हो। हुरिया से शादी करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, वरना जिस मकाम पर आज मैं हूँ उससे बहुत पीछे चला जाऊँगा। लेकिन बहराम, मैं ऐसा नहीं होने देना चाहती। जीते जी तुम्हें किसी और का होते हुए नहीं देख सकती। मैं किसी और का नहीं हो सकता। मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और तुम्हारा ही रहूँगा। हुरिया से शादी करना मेरी मजबूरी है। मैं सिर्फ अपने मकसद के लिए ऐसा कर रहा हूँ, वरना मुझे तुमसे कोई दूर नहीं कर सकता। वो उसे यकीन दिला रहा था, लेकिन वो इतनी खूबसूरत और कम उम्र है बहराम के कोई भी उसकी तरफ राग़िब हो सकता है। वो बहुत से शुबहात में घिरी थी। वो जितनी भी खूबसूरत हो, मेरी नज़र में वो मकाम हासिल नहीं कर सकती जो तुम्हारा है। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें भी मुझ पर इतना यकीन होना चाहिए। वो उसके दोनों हाथ थामे उसे यकीन दिला रहा था, लेकिन नेहा का दिल उसकी किसी भी बात पर एतबार लाने के लिए राज़ी नहीं था। वो अपने कमरे में बैठी कोई रिसाला पढ़ने में मसरूफ़ थी, जब दरवाजे पर होने वाली दस्तक पर चौंकी। आपको आपके बाबा साईं बुला रहे हैं। बड़े बाबा मुझे क्यों बुला रहे हैं? हिम्मत करती हुई उनके कमरे की तरफ बढ़ी। अस्सलामुअलैकुम बड़े बाबा, आपने मुझे बुलाया था। दरवाजे पर दस्तक देकर इजाज़त मिलने पर वो अंदर दाखिल हुई। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है मेरी हूर? उसके सर पर शफकत से हाथ फेरते हुए बोले और उसे अपने सामने बैठने का इशारा किया। मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी, और मुझे यकीन है कि आपको मेरी किसी भी बात से इख्तलाफ नहीं होगा। वो संजीदगी से बोले।
जी बड़े बाबा, आप हुक्म करें, वो अदब से बोली। हम चाहते हैं कि अब आपकी शादी कर दी जाए। वो संजीदगी से बोले। आपको कोई एतराज़ तो नहीं है? नहीं बाबा साईं, वो सर झुकाते हुए बोली। आपके वालिदैन जिंदा होते तो उनकी भी यही ख्वाहिश थी कि आपकी शादी बहराम से की जाए। वो बहराम के नाम पर चौंकी थी। अगर बीच में हालात ना बिगड़ते तो हम पहले ही आप दोनों का रिश्ता तय कर चुके होते, लेकिन उस वक्त ऐसा ना हो सका। लेकिन अब हम यही चाहते हैं कि आपकी और बहराम की शादी कर दी जाए। वो उसे तफसील बता रहे थे, जबकि वो उनकी बात पर बुरी तरह चौंकी। वो उन्हें फ़ौरन इनकार कर देना चाहती थी, लेकिन इतना हौसला नहीं था। आपको कोई एतराज़ है इस रिश्ते पर? उन्होंने उसकी मर्ज़ी जाननी चाहिए। बाबा साईं, बहराम पाही तो पहले ही शादीशुदा हैं। थूक निगलते हुए वो बमुश्किल बोली। लेकिन वो उसकी बात काटते हुए बोले, तो क्या हुआ? वैसे भी उनकी इस शादी को हम नहीं मानते। वो बस ज़बरदस्ती का सौदा था, और ये आपके वालिदैन की भी ख्वाहिश थी। इसलिए हम चाहते हैं आप दोनों को मजबूत रिश्ते में जोड़ दिया जाए। वो उसे समझाते हुए बोले, तो वो खामोश हो गई। जी, मुख्तसर सा जवाब देकर वो वहीं खड़ी रही, जबकि आंखों से बेख्तियार आंसू निकलना शुरू हो चुके थे। बेटा, आप हम पर यकीन करें, हम आपके बड़े हैं और आपके हक में कोई गलत फैसला नहीं ले सकते। वो प्यार से बोले तो वो भी उनके साथ लगकर अपने रुके हुए आंसू बहाल करने लगी। बड़ी अम्मी, मैं जानती हूँ मामा बाबा और आप सब की भी यही ख्वाहिश है, लेकिन मेरा दिल इस बात पर बिल्कुल राज़ी नहीं हो रहा। मैं बहराम भाई को कैसे कबूल कर सकती हूँ? वो पहले से ही शादीशुदा हैं। हसन साहब के कमरे से निकलकर वो वापस अपने कमरे में आई तो बड़ी अम्मी वहीं बैठी थी। बेटा, अब आपका और बहराम का रिश्ता बचपन से तय हो चुका था और आप जानती हैं अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन बड़ी अम्मी, मैं कैसे किसी की हक तलफी कर सकती हूँ? नेहा भाभी का जो मकाम है वो मैं कैसे ले सकती हूँ? आप किसी का मकाम नहीं छीन रही, आपका अपना एक मकाम है। नेहा को आपके बाबा साईं ने कभी अपनी बहू के तौर पर कबूल नहीं किया। वो हमारे रस्म और रिवाज पर पूरा नहीं उतरती, जबकि आप इसी ख़ानदान की पली बढ़ी हैं और तमाम रिवायात से वाकिफ़ भी हैं। बहराम के साथ आप ही अच्छी लगेंगी, वो इसे समझाते हुए बोली। लेकिन बड़ी अम्मी, उसने एहतजाज करना चाहा, लेकिन वो उनकी बात काटती हुई बोली, बस बेटा, यह आपके वालिदैन की भी ख्वाहिश थी, ये आपके भी वालिदैन की ये ख्वाहिश थी और आपके बड़ों का ये फ़ैसला भी। एतराज़ की कोई गुंजाइश नहीं निकलती। लेकिन बहराम भाई, क्या वो मान जाएंगे? वो अभी भी राज़ी नहीं थी। वो राज़ी हैं बेटा, उनसे पहले ही बाबा साईं पूछ चुके हैं। वो तमाम रस्म व रिवाज से वाकिफ़ हैं, इसलिए उन्हें कोई एतराज़ नहीं। बेहतर होगा आप भी खुद को तैयार कर लें कि बहरहाल फ़ैसला हो चुका है और तब्दील होने वाला नहीं है। नेहा बहराम के सामने तो चुप हो गई थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे हूरिया बुरी तरह खटक रही थी। हूरिया की जगह कोई और लड़की होती तो कभी वो इतना परेशान ना होती, लेकिन हूरिया चूँकि इंतहा की खूबसूरत भी थी और बेतहाशा ज़मीनों की मालिक भी थी, इसीलिए नेहा उसको लेकर बहुत परेशान थी। वो शादी से पहले हूरिया पर बहुत कुछ वाजे कर देना चाहती थी, ताकि वो खुद ही दिल बर्दाश्ता हो जाए। वो जानती थी हूरिया कम उम्र है, और अगर उससे एक दो बातें कहेगी भी तो हूरिया ज़रूर बदगुमान हो जाएगी। वो हूरिया को ढूंढते हुए कमरे से बाहर निकली तो उसे वो लॉन में बैठी हुई नजर आई। काले जोड़े में वो सादगी में भी कयामत ढा रही थी। उसे देखकर नेहा का दिल एक लम्हे को डूबा। ये लड़की सादगी में भी इतनी कयामत ढा रही है, जो ज़रा सा बनाव सिंगार कर ले तो वैसे ही होश उड़ा देगी। सर झटक कर वो उसकी तरफ बढ़ी, जो आसपास बेगाना अपने आप में मसरूफ़ थी। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, नेहा उसके करीब जाकर सर्द लहजे में बोली। तो हूरिया डर कर खड़ी हो गई। जी, बहराम को कभी खुद की तरफ रागिब करने की कोशिश मत करना। ये ख्याल अपने दिल से निकाल दो कि वो तुम्हें कभी कबूल करेगा। वो सिर्फ मुझसे मोहब्बत करता है। तुमसे शादी करना फ़कत उसकी मजबूरी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बहराम तुमसे सिर्फ इसलिए रिश्ता जोड़, वो सर्द लहजे में कह ही रही थी। उसकी बात अभी बीच में थी जब बहराम की रोबदार आवाज़ पर उसकी बोलती बंद हुई। तुम यहाँ क्या कर रही हो नेहा? अंदर चलो, वो नेहा से मुखातिब हुआ। मैं इसको इसकी असलियत बता रही हूँ बहराम, वो गुस्से से बोली। अंदर चलो नेहा, उसने अपनी बात दोहराई। लेकिन नेहा ने कुछ कहना चाहा। मैं कह रहा हूँ अंदर चलो तुम। अब की बार वो गुस्से से बोला तो नेहा बगैर कुछ कहे अंदर चली गई। और तुम बाहर क्या कर रही हो? मैं जब घर आता हूँ तुम लॉन में नज़र आती हो।
अंदर बैठा करो आराम से। 100 मुलाजिम होते हैं बाहर, हर एक की नज़र पड़ती है। अब के वो हुरिया की तरफ मुड़ा और उसे झाड़ते हुए बोला, अंदर रहा करो, आइंदा मैं तुम्हें लॉन में ना देखूं। बहराम के एक बार कहने की देर थी, वो दोबारा उसे लॉन में नजर नहीं आई। आज बड़े दिनों के बाद वो उसे देख रहा था। आज डाइनिंग पर खिलाफे मामूल सभी जमा थे। बहराम ने सर उठाकर हुरिया का जायजा लिया, जो सर झुकाए खाने में मसरूफ थी। सर पर सलीके से दुपट्टा जमाए नजरें नीची किए, चेहरे पर बला की मासूमियत। वो किसी को भी अपनी तरफ राग़िब कर सकती थी और वो खुद ही नावाकिफ थी इस बात से। गर्दन मोड़कर बहराम ने अपने साथ बैठी अपनी बीवी को देखा, जिसका दुपट्टा गले में झूल रहा था। चेहरे पर खूबसूरती से मेकअप किया हुआ था। वो एक लम्हे को दोनों का मवाजना करने लगा, जब हसन साहब की आवाज़ पर ख्यालों की दुनिया से बाहर आया। खाने के बाद आप मेरे पास आइएगा बहराम, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बहराम से मुखातिब होते हुए वो बोले। बहराम जानता था कि वो क्या बात करना चाहते। जी बाबा साईं, वो मुअद्दब अंदाज में बोला तो नेहा जल कर रह गई। उसे बहराम की यही फर्माबरदारियां खलती थीं। आज हम आपके हाथ की चाय पियेंगे हूर बेटा, खाने से फारिग होकर हमारे कमरे में चाय ले आइएगा। अब की बार वो हुरिया से मुखातिब हुए, जिसने उनकी बात पर सर हिला दिया। वो दोनों से कोई बात करना चाहते थे, लेकिन नेहा की मौजूदगी में एक साथ आने का नहीं कह सकते थे, इसलिए बात बनाते हुए बोले, बहराम तुम एक बार बाबा साईं से बात तो करके देखो, क्या पता वो मान जाएं। वो बाबा साईं के कमरे में जाने लगा जब नेहा बोली, फजूल बात पर बहस मत करो नेहा, हूर बचपन से मेरी मंग है। अगर मेरी तुमसे शादी ना होती तब भी उसी से ही होती। वो संजीदगी से बोला, लेकिन तुम एक बार उन्हें कायल करने की कोशिश तो करो। वो अपनी बात पर बजिद थी। तुम्हें एक बार बात समझ क्यों नहीं आती? उस दिन भी तुमने हुरिया से ना जाने क्या क्या कह दिया। उस वक्त मैं चुप रहा और तुम्हें कुछ नहीं कहा। आज भी तुम फजूल बात पर बहस कर रही हो, जबकि मैंने शादी से पहले ही तुम्हें सब कुछ बता दिया था कि हमारे कैसे रस्म व रिवाज हैं। आइंदा इस मौजू पर मुझसे बहस मत करना। वो अच्छे से उसकी ब्रेन वॉशिंग करते हुए बोला, लेकिन तुमने कहा था तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। वो आंसुओं के दरमियान बोली, मैं अब भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन हर बात पर तुम्हारा पाबंद नहीं हूँ। तुम्हें पता है मेरे मिजाज का, मुझे ये रोक टोक बहस नहीं पसंद। मोहब्बत का मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी हर बात बर्दाश्त करता जाऊँ। गुस्से से कहता हुआ वो कमरे से बाहर चला गया। पुरसोच नज़रों से उसे देखती रही। वो बाबा साईं के कमरे में मौजूद था जब हुरिया दस्तक देकर दाखिल हुई। बहराम को महसूस हुआ जैसे वो उसकी मौजूदगी में झिझक रही हो। बैठो दोनों, बाबा साईं चाय पीते हुए बोले। हूर बेटा, बहराम को भी चाय डाल दो। बड़ी अम्मी हूर से बोली, जो कि नज़रें नीची किए बैठी थी। उनकी बात पर आहिस्ता से उठी और बहराम के लिए चाय डालने लगी। इस सारे दौरानिए पर बहराम की नज़रें उसी पर थीं और वो बखूबी महसूस कर रहा था कि उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। हम शादी की तारीख रखना चाह रहे हैं और हम चाहते हैं आप दोनों की मर्जी से ही कोई फ़ैसला करें। हसन साहब ने बात शुरू की। अब जो भी फैसला करेंगे हमें कबूल होगा बाबा साईं, बहराम मुअद्दब सा बोला। बहराम के जवाब पर मुतमईन होते हुए हुरिया की तरफ मुड़े, जिसने अपना सर इस बात में हिला दिया। मुझे भी आपका फैसला कबूल होगा बाबा साईं, वो आहिस्तगी से बोली। फजूल रसूमात तो आप लोग जानते हैं हम कितने खिलाफ हैं उनके, बस सादा निकाह और वलीमा ही करना है, वो अपनी राय देते हुए बोली। आप क्या कहती हैं इस बारे में बेगम? उन्होंने अपनी बेगम की तरफ देखा। मैं भी इन फजूल रसूमात के हक में नहीं हूँ। ठीक है, फिर निकाह और वलीमे की तारीख रख लेते हैं, वो बहराम और हुरिया की तरफ देखते हुए बोले। ठीक है बाबा साईं, जो भी तारीख आप तय करें, वो सादतमंदी से बोला। अगले माह की कोई भी तारीख रख लेते हैं, इसके बाद चूंकि इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो जाएंगी तो मुश्किल होगी, वो सोचते हुए बोले। वो अपनी राय देता हुआ बोला, ठीक है फिर अगले माह की यही तारीख रख लेते हैं, 1 माह काफ़ी होगा तैयारियों के लिए, वो तारीख तय करते हुए बोले। तो सभी उनकी बात से राजी थे। हुरिया अपनी पसंद का जोड़ा पहनना चाहती हैं अपनी शादी पर। बड़ी अम्मी ने बात शुरू की, तो मैं क्या कर सकता हूँ? हम चाहते हैं आप उसे अपने साथ शहर ले जाएं और उन्हीं की पसंद का जोड़ा दिलवा दें। बिल्कुल भी नहीं, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? हुरिया शहर नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती वो शहर? उन्होंने इनकार की वजह जानना चाहिए। वो अकेली थोड़ी ना होंगी, आप भी तो उसके साथ होंगे। मेरे अलावा और भी तरह तरह के मर्द होंगे बाजार में, और किसी की भी नज़र इस पर पड़े तो ये मेरी बर्दाश्त से बाहर होगा। अब की बार उसके लिए अपना गुस्सा काबू रखना मुश्किल था, इसलिए सख्ती से बोला। उसकी बात पर ओट में खड़ी हुरिया का चेहरा
मुरझा गया। हुरिया, अब आपकी जिम्मेदारी है। उनको हर तरह की नज़र से महफूज रखना आपका फ़र्ज़ है, और मैं आपसे इजाज़त तलब नहीं कर रही, हुक्म दे रही हूँ आपको। बहराम के जवाब पर वो संजीदगी से बोली, आपका हुक्म सर आंखों पर अम्मी जान, लेकिन हुरिया शहर में किसी सूरत नहीं जाएगी। गुस्से से कहता हुआ वो वहाँ से उठ गया। गुजरते हुए उसकी नज़र हुरिया पर पड़ी, जिसकी आंखों में पानी आ चुका था। 2 दिन हुरिया कमरे से बाहर नहीं निकली। बहराम के इनकार पर उसका दिल बहुत दुखा था। वो छोटी छोटी बातों को ही दिल से लगा लेने वाली थी। हुरिया कहाँ है? खाने की मेज़ पर उसे गैर मौजूद देखकर हसन साहब ने पूछा। वो 2 दिन से अपने कमरे में ही खाना खा रही हैं। तबीयत ठीक है उनकी? पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। उन्हें परेशानी हुई। जी तबीयत ठीक है, बस वैसे ही उदास हैं आजकल कुछ। वो बहराम को मलामती नज़रों से देखते हुए बोली तो वो नज़रें चुरा गया। जानता था कि अगर बाबा साईं को पता चला तो वो बहुत खफा होंगे। हुरिया बीबी, आपको छोटे साईं बुला रहे हैं दालान में। मुझे क्यों बुला रहे हुए? वो दालान में दाखिल हुई तो एक लम्हे को गुंग रह गई। वहाँ हर तरफ अरूसी जोड़े बिखरे हुए थे। वो हैरानी से आगे बढ़ी, बहराम को सवालिया नज़रों से देखा जो उसे ही देख रहा था। जो तुम्हें पसंद आता है वो रख लो, शहर से ही मंगवाए हैं सारे। हुरिया को मज़ीद हैरानी हुई। वो सोच भी नहीं सकती थी कि बहराम उसकी ख्वाहिश इस तरीके से पूरी करेगा। उसने अपने लिए एक जोड़ा पसंद कर लिया। तुम्हें हुरिया की ख्वाहिश की इतनी परवाह क्यों थी? इतने जोड़े क्यों मंगवाए तुमने शहर से? वो वहाँ से उठकर कमरे में आया तो नेहा गुस्से से बोली। वो अपनी पसंद का जोड़ा पहनना चाहती थी, इसलिए। वो लापरवाही से जवाब देकर खामोश हो गया। और तुम्हें उसकी पसंद नापसंद की इतनी परवाह क्यों है? नेहा ने गुस्से से पूछा। जब तुमसे शादी हुई थी तब तुम्हें भी तो लेकर गया था पसंद का जोड़ा दिलवाने। वो शहर नहीं जा सकती इसलिए घर में मंगवा लिए। इसमें इतनी बड़ी बात क्या है जिसका तुम इशू बना रही हो? तुम समझ क्यों नहीं रहे? बहराम, मैं शिराकत बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो बेबसी से बोली। तो कौन कर रहा है शिराकत? मैं तो बस वही कर रहा हूँ जो मुझे ठीक लग रहा है। शादी से पहले अगर मैं हुरिया के साथ कोई भी अजीब रवैया रखता हूँ और बाबा जान को उसकी खबर हो जाती है तो तुम नहीं जानती वो क्या कुछ कर जाएंगे। अगर वो मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं तो उससे कहीं ज़्यादा हुरिया से भी प्यार करते हैं। जब तक निकाह नहीं हो जाता तुम्हें ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। हाँ, जब हुरिया मेरी दस्तरस में आएगी तब देखी जाएगी। वो उसे समझाते हुए बोला। तुम बदल तो नहीं जाओगे शादी के बाद? उसने नया अंदेशा जाहिर किया। तुम अपनी अम्मी के घर चली जाओ नेहा, जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती। तुम मुझे खुद से दूर करना चाह रहे हो। नहीं, मैं तुम्हें इस तकलीफ से दूर करना चाह रहा हूँ जो तुम्हें यहाँ रहकर मिलेगी। जितना सोचोगी उतनी तकलीफ रहेगी। कुछ दिन इस माहौल से दूर रहोगी तो खुश हो जाओगी। मैं तुम्हारे बगैर कभी खुश नहीं रह सकती। फिलहाल जो हालात हैं तुम मेरे साथ भी खुश नहीं रह सकती। वो उसी अंदाज में बोला। तुम छोड़ो ये सब कुछ बहराम, हम दोनों शहर चले जाते हैं। क्या करना है हमें इस ऐसी दौलत और शोहरत का जो हमें साथ ना रहने दे। वो उसे नया मशवरा देते हुए बोली। तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम फजूल बातें क्यों कर रही हो? कुछ ही अरसे बाद इलेक्शन शुरू होने वाले हैं और इस बार मैं इलेक्शन लड़ूंगा। इतना अरसा मैंने इस लम्हे का इंतज़ार किया है। अब तुम चाहती हो जब मेरी ख्वाहिश पूरी होने वाली है तो मैं पीछे हट जाऊं। अब की बार वो बहुत गुस्से से बोला था। ये उसकी बहुत बुरी आदत थी कि वो ज़्यादा देर अपना गुस्सा नहीं दबा सकता था। सामने वाला चाहे जितना भी अजीज़ होता वो अपने गुस्से पर काबू नहीं पा सकता था। तुम्हें अपनी ख्वाहिशात मुझसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, वो दुखी लहजे में बोली। मुझे अपना सब कुछ बहुत अजीज़ है, अब खुद से जुड़ा हर रिश्ता, अपनी ख्वाहिशात भी। अपना सामान पैक कर लो, सुबह मैं तुम्हें छोड़ आऊँगा शहर। वो उसका सर अपने कंधे पर रखता हुआ बोला। लेने कब आओगी? जब तुम खुद को इन हालात को फेस करने के लिए तैयार कर लोगी। वो संजीदगी से बोला तो वो आंखें मूंद गई।